Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Jignesh Gokani ji. Namaskar. जय श्री राम. काफी दिन से हम एक अच्छी प्रोग्राम करने वाले थे. हाँ जी भाई, no one should have a misunderstanding. I have toured Pakistan, reported from there. We are not against any communities, but it has to be understood. I am a Hindu by birth. At the same time, we respect and those who believe in other religions too. We say Jai Shri Ram. Nothing against, but at the same time, it is fundamental that we discuss this religion of majority too. And those who don't believe, again we say Jai Shri Ram. No issues. For that reason, after Bala Rama Prana Pratishtha in Ayodhya, I have made a show also. हिंदू सांप्रदाय कितनी महत्व रखती है. हम बोले कि ब्राह्मण है, वैश्य हो, शूद्रा जैसे प्रधानमंत्री को भी प्राण प्रतिष्ठा करने का मौका दिया है ये हिंदू सांप्रदाय. इसीलिए हम बोलते हैं जय श्री राम. ऐसे विशिष्ट सांप्रदाय हमारे उसमें है. और एक कमेंट भी बताता हूं गार्गे जी के द्वारा, और इंडियन एक्सप्रेस में भी कानून, दे सेड कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिलाइड एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. How can a state of head participate? First of all, Indian Express and all those have made it very clear. He is a born Hindu. He has got Maryada towards his belief. And he is not mixing his Maryada belief with the administration. Is there any article or directive principles or wherever it is indirect that a state head should not perform Prana Pratishtha? Make it clear, because we are here to accept. We will accept it very clearly. And Supreme Court after so many years of trial from both the sides, it pronounced a judgment. Based on that, Ram temple has come. This is a different thing. We Hindus have, we say, why are you neglecting Bhadradi Rama? It is sinking. Why you could not go to Ramasetu? And there, Nalambalam. We say Nalambalam. Temples for Ram and brothers in only Kerala, that to Ramapur, such a big pilgrimage, it is ignored. We are questioning our Prime Minister because he is not going. If he was a Prime Minister, I seriously question him. But as a Hindu, going for Prana Pratishtha, I have every right as a Hindu to question him also. As a citizen, I am questioning him. And as a Hindu, I am questioning him. Because only why Hindu temples are under endowment department and government department? What is this nonsense going on? Correct. Whereas other religions are allowed to practice. Correct. Absolute freedom. But how is that Hindu belief faith? That is why I question him. That he went to Ramasetu, but he forgot to visit Bhadradri Rama and Nalambalam also. Only temples for Rama and brothers in Ramapuram, because their communist government, they don't want to adopt. We find because so much of revenue Shabarimala Ayyappa is giving them throughout the year, Guruvayur Krishnan. But still again, Rama is also there, Nalambalam. Revenue throughout the year, employment throughout the year, in the name of one Hindu religion and their belief. Can you deny, Mr. Pinarayi Vijay, to all those people who have been shouting from the rooftop? Can any other religion contribute such type of things? Where is that entire money of Shabarimala? Instead of improving devotees' facilities and all, where is that money going? Similarly, Tirumala Tirupati Devasthanam in Andhra Pradesh, Guruvayur, Nalambalam, if you develop, that also will come in a big way. Bhadradri Rama, and also Lakshmi Narasimha Swami, we say it, Yadagiri Gutta. I only call him Gutta only in Telangana, Hyderabad, nearer to Hyderabad. Correct. Where is that money going? Did anyone question on that? Hindu is paying 3 taxes: direct tax, income tax, indirect GST, and temple tax. Correct. For how long we should suffer? That is why this show is also important. Sarji, I have seen Kharge ji. He is a versatile man and I respect him. PM Narendra Modi thinks he is 11th avatar of Vishnu, says Congress president.
Addressing a public rally at Banu School ground in Dehradun on Sunday, Congress National President Mallikarjun Kharge criticized the Prime Minister Narendra Modi, saying the PM wants people to focus solely on his face each morning instead of deities or gurus. You are insulting Khargeji. We respect you and Modi. You are all politicians. We are a representative democracy. You go ahead. But how is that you are trying to taint our deities, Vishnu and all? Mr. Kharge, you are supposed to construct Hanuman temple in every district or panchayat, I don't know, in Karnataka during elections you have promised. Did you do that? Yes. I'm coming to you. Yes, sir. Yeah. Sarji, go ahead. Yeah. So the point where you have stopped, I would like to start from the same point. See, Yes, अगर आप भारतवर्ष की बात करें तो 10th सेंचुरी के अंदर भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था। अभी तो एक आई थिंक ग्लोबल रिपोर्ट भी आई है, इकोनॉमिक फोरम ने उन्होंने किया था कि हमारा कंट्रीब्यूशन, आई मीन नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट भारतवर्ष एज अ होल कंट्री, तब हम लोग एक संपूर्ण भारत या यूं कहे कि अखंड भारत के रूप में थे, जहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल ये सभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और उस वक्त पूरे वर्ल्ड का 35% जीडीपी इंडिया का था। ठीक है, सो वी वर द ग्लोबल पावर्स। और ये रिपोर्ट बहुत रिसेंटली आई है कि चाइना एंड इंडिया वेर ग्लोबल पावर्स इन द 10th सेंचुरी। अब होता ये है कि जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी होती है वहां पे सारे चोर और डकैत आते हैं चोरी करने के लिए। कभी आपने देखा कि स्लम एरिया में जाके बहुत चोरी हुई हो? ठीक है, चोरी हमेशा वहां होती है जहां पे अच्छे रेप्यूटेड लोग, बंजारा हिल्स से, जुबली से, हैदराबाद पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो। सो उसी प्रकार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस और सबसे ज्यादा रिच लोग जो थे वो हिंदू लोग थे या सनातन थे, जिसको मैं अखंड भारत कहूंगा। तो उस वक्त लोग यहाँ पे चोरी करने आते थे इन द फॉर्म ऑफ इन्वेडर्स। और हमारे यहाँ का एक संस्कृति था, मतलब मेहमान को या जो भी गेस्ट होते हैं उसको हम देवता मानते हैं, राइट? अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति रही है। तो हम लोग जो बाहर से लोग आते थे उनको शेल्टर देते थे या उनको खाना पीना देते थे, उनको रहने की, कि भाई आप ठीक है, आपकी जो भी बेसिक नेसेसिटी आप ले लीजिए। अब उसे धीरे धीरे वो अपना हक समझने लगे, उसके ऊपर वो अपना आधिपत्य समझने लगे। और इस प्रकार धीरे धीरे 10th सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी तक बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके अंदर अखंड भारत में से आज जो भारत बचा हुआ है उतना ही हिस्सा है। इसके अंदर मुस्लिम इन्वेडर्स भी आ गए और ब्रिटिशर्स भी आ गए। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि जो ब्रिटिशरों ने और इन्वेडर्स ने जो लॉ तब लगाए थे, तब जजिया होता था जब मुस्लिम इन्वेडर्स होते थे कि हिंदू के ऊपर टैक्स लगाते थे। यानी ये न केन प्रकारेण हिंदू की प्रॉपर्टी को कैसे कब्जा करना, उसके ऊपर कैसे अटैक करना, इसके लिए इन्वेडर्स थे। यानी मुसलमानों ने कुछ, जैसे वो लोग मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना लेते थे या फिर वो मंदिर का जो भी अमाउंट आता था वो खुद रख लेते, बहुत सारी ऐसी चीजें थी। यही चीज ब्रिटिशरों ने की कि ब्रिटिशरों ने एंडोमेंट एक्ट लगाया। अब कांग्रेस ने भी आफ्टर इंडिपेंडेंस ये एंडोमेंट एक्ट को कंटिन्यू किया। यानी कांग्रेस भी एंटी हिंदू एंड प्रो मुस्लिम पॉलिसी के ऊपर पिछले 70 साल से चल रही है। तो आपने जो खड़गे जी का जो स्टेटमेंट दिखाया वो उसी चीज को दिखाता है कि ये एक जो मानसिकता थी, यानी 1947 से लेकर के 2014 तक भारत को इंडिपेंडेंस मिला था लेकिन हिंदुओं को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। आपने जो भी मोदी जी भी आके 10 साल रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं, मोदी जी ने हिंदू का इंडिपेंडेंस किया। जैसे कि आपने उज्जैन के अंदर महाकाल का मंदिर डेवलप होते हुए देखा, आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनते हुए देखा। एंडोमेंट एक्ट से टेम्पल्स को निकाल देना चाहिए था, उनका वो मुद्दा था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। इसके ऊपर हम चिंतित हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो ये काम कर रहा है। आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि एंडोमेंट एक्ट ही रिमूव होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो मंदिर का जो पैसा आता है वो मंदिर के ही डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए, उसके लिए एंडोमेंट एक्ट था ओरिजिनल। तो अभी गवर्नमेंट अगर ये कर रही है कि जो मंदिर में जो पैसा आ रहा है, जो मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा है, उसी मंदिर के पैसे से मंदिर के डेवलपमेंट के लिए काम होता है, तो ये भी अच्छी बात है। पहले क्या होता था 2014 के पहले कि हिंदू टेंपल बोर्ड में जितना पैसा आता था वो फिर चर्च और मदरसास के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। जैसे कर्नाटका का पूरा ऑफर एक फिगर था कि 890 करोड़ रुपीस उसमें रिसीव किया, 550 करोड़ मतलब हम शो में बताया। हाँ, हम एक शो भी किया, इसमें बताया भी, कर्नाटक का एक उदाहरण लिया है। अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर और सब जगह अवेलेबल है ये फिगर्स। रिकॉर्ड है इसको, एनीवन कैन चेक।
हाँ, Yeah. तो ये है कि ये वास्तविकता थी कि स्वतंत्र भारत के अंदर हिंदू जो है वो अकेला ही डिप्राइव्ड है फ्रॉम ऑल द राइट्स इंक्लूडिंग द राइट ऑफ रिलीजियस बिलीफ। बाकी सब लोगों को सारे राइट्स है इन द नेम ऑफ माइनॉरिटी। तो ये जो करेक्टिवनेस करने की बात थी, जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी अक्सर कहते हैं कि लास्ट 75 ईयर से हिंदू जो है, मतलब ये भारत अकेला ऐसा कंट्री है जहां पर मेजोरिटेरियन लोग जो है वो अपनी स्वतंत्रता के लिए या अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। अदरवाइज वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहां मेजोरिटेरियंस को माइनॉरिटी के सामने फाइट करना पड़े कि भाई हमें राइट नहीं मिल रहा है।